Thank you, Lord. Sing that song. उस गीत को हम गाएं। Oh, how I love Jesus. प्रभु यीशु, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, Because He first loved me. क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। There is a song एक गीत है I love to hear. जो मैं सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I love to sing its worth. और मैं उसके मूल्य को गाना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. There is a one that love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ears. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you. परमेश्वर, हमारा हृदय तेरे प्रति आज धन्यवाद से भरा है। For one more day एक और दिन के लिए to live for you, तेरे लिए जीने का जो मौका दिया है, to sing your praises. तेरी स्तुति गाने का मौका दिया है। Change our hearts, O God. प्रभु, हमारे हृदयों को अब बदल दे, Turn it away from the world दुनिया से उसको मोड़ दे, and turn it towards yourself. तेरी ओर हमें मोड़ ला। May your face shine upon us तेरी मुख की ज्योति हम पर चमके स्वामी, and we shall be saved. और हम बच जाएंगे। We pray for many homes that are going to trouble. प्रभु, हम बहुत से परिवार जो संकट से गुजर रहे हैं उनके लिए Pray प्रार्थना। for them in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए तुझसे मांग, That deliverance will come. छुटकारा उनके लिए आने पाए, Peace will come. शांति वहां आने पाए। Remove all those hindrances the enemy makes in their lives. सारी रुकावटें जो शत्रु उनके जीवनों में बनाता है उसे दूर कर, May Christ become Lord of all. और यीशु मसीह सब बातों में प्रभु ठहरे। Bless your word to our hearts. अपने वचन को आज हमारे हृदय के लिए सर आशीष बना दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। We are so glad to be with you all. हम आनंदित हैं आप लोगों के बीच में पाए जाकर, And very specially we thank Pastor Moses और बहुत विशेष तौर से हम पास्टर मोसेस को धन्यवाद देना चाहते हैं for inviting us to be on their page. और उनके पेज में हमें इस प्रकार से आमंत्रित करने के लिए। So greetings to all your church in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आपकी कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन। We bless you. हम आपको आशीष देते हैं यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। He's a very old friend of ours वो हमारे बहुत ही पुराने मित्र में से हैं and a dear man of God. और बहुत ही प्रिय प्रभु के जन हैं। Amen. आमेन। Greetings to you and your family also.
भाई आपको और आपके परिवार को भी यीशु मसीह के नाम से अभिवादन, And also Pastor Vijay Das. और पास्टर विजय दास आपको भी। Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। We are limited with time, हम समय के साथ बंधे हुए हैं and I am sort of like long-winded when I preach. और बहुत समय के मैं इसे प्रचार नहीं करना चाहूँगा। All right. This morning is just a thought I want to leave with you आज सुबह एक विचार मैं आपके संग में बांटना चाहता हूँ in regards to Simon the Pharisee who invited Christ in his शमौन house. फरीसी को लेकर जिसने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया। That we find in Luke's Gospel 7th chapter. ये हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय Reading from verse 36. और उसकी 36 आयत से पढ़ते हुए। And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। You can read that afterwards. बाकी हम बाद में पढ़ सकते हैं। But this is a place where Jesus is invited by a Pharisee. ये एक ऐसी जगह थी जहां पर यीशु मसीह को एक फरीसी ने आमंत्रित किया था। And Jesus took the invitation, went to his house. यीशु मसीह ने निमंत्रण स्वीकार किया, उसके घर गए। But certain things happened during his time over there. लेकिन यीशु मसीह जब वहां उस घर में थे, वहां पर कुछ घटना घटी। We must know इस बात को हमें जानना चाहिए, in our Christian walk with God, परमेश्वर के संग जो मसीही चाल हम चलते हैं, we are always expecting God to do something for us. हम हमेशा अपेक्षा करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ करे। God does give us the desires of our heart. परमेश्वर हमारे हृदय की मनोकामनाओं को पूरा करता है। He will not withhold any good thing from us. वो कोई भी भली चीज हमें देने से रोकता नहीं है। But we forget many times. लेकिन कई बार हम इसे भूल जाते हैं He also wants something in return. कि परमेश्वर भी बदले में हमसे कुछ चाहता है। He told those that one Samaritan leper who had returned to him. उसने उन लोगों को एक सामरी के बारे में बताया, एक कोढ़ी के बारे में जो लौट कर आया था। And he said to him, और उसने उससे पूछा were not 10 cleansed? कि सारे 10 कोढ़ी क्या शुद्ध नहीं हुए? One returns to give thanks. और केवल ये एक जन लौटा है धन्यवाद देने को। That means he was expecting thanksgiving. इसका अर्थ ये है यीशु मसीह अपेक्षा करता है कि हम लौट के आए और धन्यवाद बोले। Certain things God expects from us. कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है प्रियो। And Jesus was very specifically talking to this man in this chapter. यीशु मसीह बहुत विशेष तौर से इस व्यक्ति से इस अध्याय में बात कर रहे थे In regards to this, इसी बात को लेकर। something had happened कुछ वहां पर हुआ during this Jesus being there in his house. यीशु मसीह का उसके घर में होने के बैठने के दौरान A woman who was a sinner entered inside. एक स्त्री जो पापिनी स्त्री कहलाती थी वो वहां पर प्रवेश की, into his house. उसके घर के अंदर आई। This Pharisee was so much taken up by the entry of this uninvited guest. ये फरीसी उस स्त्री को प्रवेश करते देखकर जो आमंत्रित नहीं थी, बहुत ही वो चकित हुआ That he forgot the one whom he had called. यहां तक कि वो ये बात भी भूल गया जिसे उसने बुलाया था। Even he had suspicion and doubt for the Lord himself. यहां तक कि इस घटना के कारण जिस प्रभु को उसने बुलाया था उसको लेकर भी उसके मन में संदेह उपजने लगे। And he said like this, और उसने इस प्रकार से कहा, if he was a prophet, यदि ये यीशु एक भविष्यद्वक्ता होता he would know तो वो अपने मन में जान जाता what kind of a woman is touching him. कि ये स्त्री जो उसे छू रही है कैसी औरत है नगर की। She was a sinner. वो नगर की एक पापिनी स्त्री थी। And when he was thinking this in his heart, और जब फरीसी अपने मन में इस बात को सोच रहा था, Jesus asked him a question. यीशु मसीह ने मुड़कर उससे एक सवाल किया And he said, और उससे पूछा, there was a man who had
given some money to somebody, एक व्यक्ति था two guys. जिसने 2 देनदारों को कुछ पैसा दिया था। And when they had nothing to pay, जब उनके पास वापस लौटाने को कुछ भी नहीं था, he frankly forgave them both. तो उसने उन दोनों को क्षमा कर दिया। Which one will love him more? और उसने लोगों से पूछा, उन दोनों में से कौन उस महाजन से ज्यादा प्रेम दिखाएगा? And the Pharisee said, और फरीसी ने उत्तर दिया, well, I suppose मेरे विचार से तो the one who owed him more. जिसका उसने अधिक छोड़ दिया वो ज्यादा प्यार करेगा। And then Jesus said to him, तब यीशु मसीह ने फरीसी से कहा I came into your house. कि मैं तेरे घर में आया। That is a very sad note. ये बहुत ही एक दुखद बात थी। Verse 44 says, 44 आयत कहती है, and he turned to the woman and said to Simon, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, seest thou this woman? क्या तू इस स्त्री को देखता है? I entered into thine house, and thou gavest me no water for my feet. मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। She hath washed my feet with the tears and wiped them with the hair of her head. पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। You gave me no kiss, तूने मुझे चूमा न दिया, and my head you did not anoint with oil. तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। But this woman पर स्त्री ने had anointed my feet with ointment. उसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। Listen, सुनिए, here is Jesus asking one question. यहां पर यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहा है। You called me to your house, तूने तो मुझको स्वागत किया अपने घर में आने and के I लिए, came to your house. और मैं तेरे घर में आया, But किंतु you did not wash my feet. तूने मेरे पांवों को धोया नहीं। That is, he's talking about service. ये वो सेवा की बात कर रहा है। Amen. आमेन। Jesus is talking about serving one another. यीशु मसीह एक दूसरों की सेवा के विषय में कह रहा है। The scripture says, serve the Lord with gladness. पवित्र शास्त्र कहता है, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। Amen. आमेन। Joshua served Moses. यहोशू ने मूसा की सेवा की थी। Elisha served Elijah. एलीशा ने एलिया की सेवा की थी। They served people. After the service only they became great. और ये लोगों ने सेवा करी और उसके बाद वे महान बने। And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह I रहे did हैं, not come to you as a Lord. मैं तेरे पास एक प्रभु बनकर नहीं आया, I came to you to serve. मैं तो यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। Amen. आमेन। And then he says, और तब वो बोलता who है, is greater? महान कौन The है? one who sits or the one who serves? वो जो बैठा है या वो जो सेवा करता है? Unless you become like a small child, जब तक तुम एक छोटे बच्चे के समान नहीं बनोगे, you cannot enter the kingdom of heaven. तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Where is your service as a believer? आज विश्वासी होने के नाते हमारी सेवा कहाँ चले गई है? How do we serve the church, serve the people? हम कैसे कलीसिया में सेवा देते, कैसे लोगों की सेवा Is it करते always हैं? in murmuring and grumbling? क्या हमेशा वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हुए हम करते हैं? Or you are taken up so much with that other person that you have forgotten the one whom you are called to serve. या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि आपने जिसको आमंत्रित किया उसी को भूल गए। This woman came uninvited. ये स्त्री तो बिना आमंत्रण के वहां आ गई थी She knew the consequences. और वो जानती थी यहाँ आने का नतीजा क्या हो She सकता could है। have been pushed out. उसको वहां से धक्के मार के लोग निकाल सकते She हैं, could have जानती been थी। disgraced. वो अपमानित होगी, जानती थी, She had nothing to lose. लेकिन उसके पास उसके जिंदगी में अब खोने को कुछ नहीं They था। have abused her. लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया They have था, walked over her life. लोगों ने उसके जीवन को कुचला था, Her character was assassinated. उसके चरित्र को लोगों ने खराब किया There was था। nothing to lose. उस स्त्री के पास में बचाने को कुछ नहीं था। She had only one hope. केवल एक आशा उसको दिख रही थी, The feet of Jesus Christ. यीशु मसीह के चरण में। Amen. आमेन। She even didn't look at the eyes of the Pharisee. वो यहाँ तक कि उस फरीसी की ओर भी अपनी आंख नहीं उठाई। Never took permission from him to come in. उसने अनुमति भी नहीं मांगी प्रवेश करने से पहले। Uninvited. बिना अनुमति के प्रवेश की, Condemned. दोषी ठहराई हुई Guilty.
और पाप के ग्लानि में थी, rejected, लोगों के द्वारा तिरस्कृत थी, looked down, लोगों के नजरों में गिरी हुई थी, fell at the feet of Christ. यीशु के चरणों में आकर गिर पड़ी। This man, ये with मनुष्य all his banquet, वो सारे इस भोज के बीच all spread on the table, सारे भोजन वस्तु जो उसके सामने वहां पे रखे हुए थे, his heart was not right with God. लेकिन उस आदमी फरीसी का हृदय परमेश्वर के सामने सही नहीं We था। have that plaque over there. Christ is the head of this house. वो हम घरों के अंदर लिख कर रखते हैं, इस घर का मुखिया प्रभु यीशु है। Is he there? क्या वो मुखिया वहां पर है? If he is there, यदि वो वहां है, do you respect and honor him? क्या हम उसका आदर करते, क्या उसका सम्मान करते हैं? You never washed my feet. यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने मेरे पांव नहीं धोए, But this woman परंतु इस स्त्री ने, has washed my feet with her tears. इसने अपने आंसुओं से मेरे पांवों को पोंछा है। And then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, You gave me no kiss, Simon. शमौन, तूने मुझे चूमा नहीं, You did not welcome me. तूने स्वागत मेरा अच्छे से नहीं किया है, You did not show me any love. तूने कोई प्रेम मेरे प्रति दिखाया नहीं। This woman लेकिन जरा देख, इस स्त्री को has not ceased to kiss my feet. जब से मैं आया हूं, इसने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा है। Amen. मैन, Listen, friends. दोस्तों सुने, Jesus is saying, यीशु मसीह कह I रहे came हैं, to your house मैं तेरे घर में आया expecting something. तुझसे कुछ पाने की अपेक्षा से। You did not anoint my head with oil. तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला। That was fellowship. ये तेल मलना संगति है। But this woman परंतु इस स्त्री ने had poured and anointed my feet and wiped it with her hair. उसने मेरे पांवों पर इत्र मला है और उसे पोंछा है। God desires fellowship. परमेश्वर हमसे संगति की चाहत रखता है। And quickly, और जल्दी से the fourth one जो चौथी बात, is sacrifice. वो है बलिदान। What could this sinner woman have? ये पापी स्त्री के पास क्या हो सकता था? Whatever she had collected in her life. उसने अपने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा करके कुछ खरीदा था, Maybe the wrong way. और संभव है गलत तरीके से अर्जित की गई राशि, Poured it on the feet of Christ. लेकिन आज उसने वो सब उठाकर यीशु के कदमों में उंडेल दिया। And then he said to the woman, और तब वो स्त्री से बोलता है, Woman, हे स्त्री, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Go in peace. शांति से तू लौट जा। I came to your house. मैं तेरे घर में आया। That's what Jesus is asking. यीशु मसीह आज यही पूछ रहा है, Did you serve me? क्या तूने मेरी सेवा की? Do you love me? क्या तूने मुझसे प्रेम किया? Do you want to fellowship with me? क्या तू मेरे साथ में संगति रखने की इच्छा रखता Do you है? have something to sacrifice? क्या तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे लिए बलिदान करना The चाहता? guests left, everybody left. सारे जितने आए अतिथि थे वो सब चले गए। The supper was over. भोजन का वहां पर भोज समाप्त हो गया। Jesus also left. यीशु मसीह भी उस जगह से विदा हो गए। But you know something? परंतु क्या आप कोई बात जानते हैं? The fragrance of that ointment lingered in the house. उस इत्र की खुशबू अभी भी उस घर के अंदर मंडरा रही थी। Everybody who crossed that house said, हर मनुष्य जो उस घर के सामने से गुजरता था, Hey Simon, what happened? वो पूछते थे, यहाँ पर क्या हुआ? The story is told again and again. वो कहानी बार बार बताई गई होगी। Hallelujah. हालेलुया। Wherever the gospel shall be preached, जहां जहां पर भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, what this woman had said, इस स्त्री ने जो किया है उसके बारे में shall be preached वो हर जगह प्रचार किया जाएगा। from 1,000 pulpits, हजारों पुलपिट से, from a million preachers. और लाखों प्रचारकों के द्वारा This story has been told again and again. ये कहानी, ये घटना बार बार लोगों को बताई जाएगी। She spake no words, उसने कोई शब्द नहीं कहे, but she left a message. परंतु उसने एक बड़ा संदेश छोड़कर चली गई। There is a language of tears
आंसुओं की एक भाषा है that only God understands. जिसे केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। Amen. आमीन। That's why इसलिए in the last day in judgment, God will say, अंत के दिनों में न्याय के समय परमेश्वर कहेगा, when I was hungry, you never fed me. जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया नहीं, In prison, you did not visit me. जब मैं कैद में था तुम मिलने नहीं आए। They will say, when's the Lord? लोग पूछेंगे, प्रभु कब? When you did not do to the least of these my brethren. जब तुमने इन छोटों में से छोटों के साथ जो नहीं किया, तुमने मेरे संग नहीं किया। I came to your house. मैं तेरे घर में आया था। Hallelujah. हालेलुया। Somebody else किसी और ने took the blessing, आशीष को ले लिया went home in peace. और कुशल के साथ, शांति के साथ वापस चला गया। Maybe शायद after everything was over, सब कुछ पूरा होने के बाद Simon might have thought, शमौन फरीसी ने अपने मन में सोचा होगा, his house is full of the fragrance of the ointment. ये घर मेरा उस खूबसूरत खुशबूदार इत्र की खुशबू से भर गया है। The one whom I condemned जिस मनुष्य को, जिस लोगों को मैं दोषी ठहराता था, पापी कहता था, has blessed my house and gone. आज मेरे घर को धन्य करके वो चले गए। Friends, प्रिय दोस्तों, God is asking one question. परमेश्वर हम सभी से एक सवाल को पूछता है, What have you for me? तू मेरे लिए क्या रखा है? Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we ask you this day, प्रभु, हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं, change our hearts. हमारे हृदयों को बदल दे। Like this woman, इस स्त्री के समान she left a message जिसने एक संदेश को छोड़कर चली गई, without words. बिना शब्दों को कहे। We know this, Lord. इस बात को हम जानते हैं प्रभु, The tears that fall from our eyes don't go in vain. जो आंसू हमारे आंखों से गिरते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। You see them all. प्रभु, तू हमारे आंखों के आंसुओं को सब देखता है। Bless your people. तू अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दे। May we love you. हम तुझसे प्रेम कर सके वे भी, May we serve you all the days of our life. और हम सब तेरी सेवा जीवन भर कर सके। सहायता कर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।